Good morning students. Welcome to your English class. How are you students? I hope you are fine and doing very well. Students, first of all we will discuss our password. As you can see, this is our password. Our password is identify. Identify is the password for today. What is the meaning of this password? Meaning of this password in Hindi is पहचान या पहचानना. So while making sentence with this word, I want to tell you that can you identify that person? Who is he? क्या आप उस person को पहचान सकते हैं? वो कौन है? और another example is that here are two books. Which one is yours? Can you identify your book? क्या आप इन books में से अपनी book पहचान सकते हैं? So this was about our password. ये हमारे पासवर्ड के बारे में था. Our password, as you know, is identify. Now what we are going to do in our English class today? First of all, we will discuss our homework that was given to you during previous week. So I gave you a worksheet, students. This was linked with the chapter number 1, Mary and the Mouse. उसमें हमने दो topics किए थे. First was joining two words together to make a meaningful new word, and other one was sound of certain things. So उससे regarding वो worksheet थी that we will discuss today. Next what we are going to do, that we are going to do exercise D on in our English grammar book. As you know that we are doing chapter number 3 in our English grammar book. So we have exercise D to do as a classwork. So first of all we will discuss our homework, and then one thing that I forgot, that today is the homework giving day for English. So I will give you a homework too. So what is next? Let us see. Yes students, as you know that we are discussing the homework that I gave you during previous week. So this is the English worksheet that I gave you during previous week. So this was your English homework. ये आपका English का homework था. So students, this worksheet is related to our lesson number 1 in our English reader book or English communicate book. The name of the lesson is Mary and the Mouse. So we had done in that chapters book work exercises. उसमें हमने किया था, हमने कुछ words join किए थे to make a meaningful word, and कुछ sounds हमने animals के लिखे थे या match किए थे. So this worksheet is also about that. Here it is written, join the two words in the boxes to make a new word. इन boxes में जो words दिए गए हैं उनमें join करना है, यानी इस side के words को यहाँ से join करना है. But the new word that we make, it should be meaningful. So here is an example: shellfish. I am going to match snow with snowman. Snowman आपको पता है, snowman बनाते हैं हम लोग जहाँ स्नो पड़ती है ऐसे एरियाज़ में, उससे बनाकर बच्चे खेलते हैं. स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी क्या होता है? दिस इज़ द नेम ऑफ अ फ्रूट जो बहुत डिलीशियस होता है. टी पॉट. टी पॉट क्या होता है? चाय रखने का बर्तन. पॉट मतलब बर्तन, वो जो केटल जैसा होता है. यूजुअली वो सिरेमिक का बना होता है. मून लाइट. मून की लाइट, चांद की रोशनी. स्नोमैन बर्फ का आदमी. स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी जिसका नाम है, दैट इज वो फल है. टी पॉट चाय की केतली या चाय का बर्तन. एंड मून लाइट, मून की रोशनी, चांद की रोशनी. सो नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर्स, राइट द साउंड दे मेक, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पिक्चर्स को देखकर साउंड बतानी है. ऑप्शंस आर गिवन इन द बॉक्स. आई एम गोइंग टू रीड द ऑप्शंस. क्रॉक क्रॉक, डिंग डोंग, कॉके डूडल डू, ट्रिंग ट्रिंग, टिक टॉक, पर्पर. सो आई टोल्ड यू कि जो दिस इज़ द क्लॉक, ये क्लॉक का फोटो है या पिक्चर है. मैंने आपको बताया था रेफरेंस के लिए कि क्लॉक का जो साउंड होता है वो होता है टिक टॉक. हम जैसा बोलते हैं कि घड़ी क्या आवाज़ करती है, टिक टॉक, इस तरह से. सो नेक्स्ट इज, दिस इज़ द टेलीफोन, लैंडलाइन फ़ोन है. इसका साउंड क्या होगा? ट्रिंग ट्रिंग. इसका जो साउंड आता है वो क्या होता है? ट्रिंग ट्रिंग. ये हेयर यू कैन सी देयर इज अ कॉक. कॉक है, कॉक का साउंड क्या है? कॉके डूडल डू. कॉके डूडल डू, कुकड़ू कुकड़ू ऐसा हम बोलते हैं कि कॉक ऐसा बोलता है. दिस इज कैट. कैट का क्या साउंड है?
What is the sound of cat? Per. Next is bell. ये bell है, bell का sound है ding dong. And this is frog. ये frog है, उसका sound क्या है? Croak croak. So these are the sounds that these pictures जो चीज़ें हैं इन pictures में वो make करती हैं. So this was your homework, students. Now we are going to do our next exercise in our English grammar book. Yes, students, as you know that we are doing our chapter number 3, nouns, common and proper, in our English grammar book. So this is the last exercise of this chapter, that is exercise D. This exercise is on page number 18 and 19. Students, in our previous exercise, जो हमने पहले exercise की थी इस chapter की, we came to know, हमें पता चला that what is a proper noun or what is a common noun and how can we identify common noun or a proper noun. हम कैसे पहचान सकते हैं. हमने एक मेथड ये भी देखा कि जो कॉमन नाउन है और जो प्रॉपर नाउन है, उसमें जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो स्पेशल नेम है किसी पर्सन के, एनिमल के, थिंग के या प्लेस के, वो प्रॉपर नाउन होते हैं. सो सपोज आगरा इज द नेम ऑफ अ सिटी, कि आगरा एक सिटी का नाम है, तो सिटी क्या है? कॉमन नाउन, एंड आगरा इज द प्रॉपर नाउन, और वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा जो प्रॉपर नाउन होगा. सो स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन बुक इटसेल्फ, बुक में ही करनी है. और first of all you will write class work as usual and the date, that is 11th May 2020. So how we will do this exercise I am going to tell you कि I have underlined the common noun and circle the proper noun. जो proper noun है उसको मैंने circle किया है और जो common noun है उसको मैंने underline किया है. और आपको लिखना कहाँ है इनको? जहाँ कॉलम्स दिए हुए हैं पेज नंबर 19 पर कॉमन नाउन का कॉलम है तो वहाँ कॉमन नाउन लिखना है, जैसा हमने पहले की एक्सरसाइज में किया था, और जहाँ प्रॉपर नाउन का कॉलम है वहाँ प्रॉपर नाउन वाला वर्ड लिखना है. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस एक्सरसाइज डी. रीड द सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स इन देम, देन पुट दीज इन द करेक्ट कॉलम्स. यानी इन सेंटेंसेस को पढ़ना है. देयर आर 10 सेंटेंसेस गिवन टू अस. यहाँ पर मैंने 4 ही लिखी है. नेक्स्ट सेंटेंसेस में फिर से लिखूंगी. यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस. आपको सेंटेंसेस रीड करने हैं, उनमें से पहचानने हैं. आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना है कि व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन उस सेंटेंस में, एंड फिर उसके बाद उनको करेक्ट सही कॉलम में लिखना है. यानी कॉमन नाउन वाले कॉलम में कॉमन नाउन लिखना है और प्रॉपर नाउन वाले कॉलम में प्रॉपर नाउन लिखना है. So the first sentence that is given to us is Tupur is a famous artist. Tupur एक मशहूर या प्रसिद्ध आर्टिस्ट है. आर्टिस्ट क्या होते हैं? कलाकार हैं. So Tupur नेम है. It can be a girl या वुमेन जिसका नेम हो सकता है Tupur, जैसा कि नेम से सजेस्ट हो रहा है. और फेमस क्या होता है? मशहूर. आर्टिस्ट है जो कलाकार होते हैं. तो ये टुपुर इज अ फेमस आर्टिस्ट, ये सेंटेंस दिया गया था जिसमें से टुपुर है प्रॉपर नाउन एंड आर्टिस्ट इज अ कॉमन नाउन. आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, बट जब आर्टिस्ट का नेम दिया गया टुपुर तो वो प्रॉपर नाउन बन गया. नेक्स्ट इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ किंग इन अफ्रीका. एक बहुत बहुत साल पहले एक राजा रहा करता था. कहाँ? अफ्रीका में. सो लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बहुत बहुत साल पहले, मतलब हमें पता नहीं कितने साल पहले. लिव्ड मतलब रहना, देयर मतलब वहाँ, अ किंग मतलब राजा. इन कहाँ? अफ्रीका में. किंग क्या है? राजा है, बट किंग का नेम नहीं दिया. सो दिस वर्ड इज कॉमन नाउन, सो आई हैव अंडरलाइंड इट. एंड दिस इज अफ्रीका. अफ्रीका क्या है? कॉन्टिनेंट भी है. सो ये स्पेशल नेम है तो मैंने इसको सर्कल किया. दिस इज प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज एन ओल्ड porcupine called Needles lived in a forest with his sons Hockey and Pocky. They love to eat apples.
यहाँ 2 सेंटेंस मिक्स किए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस एंड्स हियर और यहाँ उसी से रिलेटेड दे किसके लिए कहा गया है, हॉकी एंड पॉकी के लिए। वो नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ से शुरू स्टार्ट होकर यहाँ फिनिश होता है। पॉक्यूपाइन एक एनिमल होता है जिसके क्विल्स होते हैं, स्पाइन्स जैसे कह सकते हैं, कांटे कांटे होते हैं। वो रैबिट के से थोड़ा सा बड़ा होता है, उतना ही एनिमल होता है, बट उसके जो हेयर होते हैं, बॉडी पे जो फर होता है उसमें साथ में हमें ऐसा लगता है कि क्विल्स हैं, कांटे हैं। सो एक बूढ़ा पॉक्यूपाइन था जिसका नाम था नीडल्स। मीन्स पॉक्यूपाइन है एनिमल, बट उसका नाम क्या है, नीडल्स। पॉक्यूपाइन क्या हुआ, कॉमन नाउन, लेकिन ये नीडल्स उसका नेम हो गया, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। वो एक जंगल में रहता था अपने बेटों के साथ। उसके बेटे क्या है, बेटे सन्स क्या है, बेटे हैं, ये है पर्सन, बट ये क्या है, कॉमन नाउन। बट जब उनका नाम दे दिया गया हॉकी एंड पॉकी, तो वो क्या बन गए, स्पेशल नेम्स, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। हॉकी एंड पॉकी आर प्रॉपर नाउन। वो किसके नाम है, सन्स के। सन्स किसके हैं, नीडल्स के। सो दे लव टू ईट एप्पल्स। वो दे किसके लिए कहा गया है, हॉकी एंड पॉकी के लिए। उनको एप्पल खाना पसंद था। सो एप्पल्स आपको पता है कि फ्रूट है, तो दिस इज कॉमन नाउन। सो इन दिस सेंटेंस, जो एक 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंसेस आर देयर, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड हैं। एक बूढ़ा पॉक्यूपाइन है, पॉक्यूपाइन इज अ कॉमन नाउन, नीडल्स उसका नाम है, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। वो एक जंगल में रहता था, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट प्लेस है, तो दिस इज कॉमन नाउन। सन्स क्या है, पर्सन के नेम है, तो वो है कॉमन नाउन। और उनके जो स्पेशल पर्सन्स के नेम क्या है, दैट उनकी स्पेशल नेम है हॉकी एंड पॉकी, तो वो प्रॉपर नाउन। और अगेन यहाँ पर एप्पल्स, एप्पल्स फ्रूट है। सो नेक्स्ट इज एट 4th नंबर, हैदराबाद इज अ सिटी फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल पर्ल्स। हैदराबाद एक शहर है जो मशहूर है अपने सुंदर पर्ल्स के लिए। पर्ल्स मोती होते हैं जो ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में काम आते हैं। हैदराबाद उस सिटी का नेम है। सिटी क्या है, कॉमन नाउन, बट उस सिटी का स्पेशल नेम है हैदराबाद, दैट इज प्रॉपर नाउन। और यहाँ क्या है, पर्ल्स। पर्ल्स क्या है, पर्ल्स भी कई तरह के होते हैं। पर्ल्स हैं मोती जो कि ऑर्नामेंट में यूज होते हैं। सो यहाँ पर उनका कोई स्पेशल मेंशन नहीं है, सो दीज आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स हियर। So these are 4 sentences. Next 6 sentences I am going to write on the another board. Yes students, at number 5, pizza is my favorite dish. It is a flat bread. We top it with tomato sauce and cheese and bake in the oven. It was first made in Italy. So you can see here are 1, 2, 3 and 4 sentences हैं। ये जो 4 sentences हैं जो पिज़्ज़ा का कुछ प्रोसेस बताया है। वी हैव टू फाइंड आउट कि जो वर्ड्स कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस। पिज़्ज़ा इज माई फेवरेट डिश। पिज़्ज़ा मेरी फेवरेट डिश है। तो डिश एंड पिज़्ज़ा इज अ कॉमन नाउन। सो यहाँ पिज़्ज़ा कॉमन नाउन क्यों है कि पिज़्ज़ा एक जनरल नेम है, बट कोई स्पेशल नेम होगा पिज़्ज़ा के लिए कि ये चीज़ पिज़्ज़ा या गार्लिक पिज़्ज़ा या अनियन पिज़्ज़ा या मेडिटेरियन पिज़्ज़ा या इस तरह का, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। सो पिज़्ज़ा एंड डिश आर कॉमन नाउन। इट इज़ अ फ्लैट ब्रेड। ये इट किसके लिए कहा गया है, फॉर पिज़्ज़ा। ये फ्लैट ब्रेड होती है, बिल्कुल रोटी के जैसा होता है। ब्रेड जिसको हम बोलते हैं, हम रोटी को भी ब्रेड बोलते हैं, टॉर्टिला भी बोलते हैं। एक चपटी रोटी की जैसी होती है। वी टॉप इट, इसमें हम टॉपिंग करते हैं किसकी, टमेटो सॉस की एंड चीज़ की। टमेटो सॉस और चीज़ तो एसेंशियल है, और उसके अलावा हम वेजिटेबल्स डालते हैं। एंड बेक इन द ओवन, और उसको ओवन में बेक करते हैं। बेक एक प्रोसेस है कुकिंग का। इट वॉज फर्स्ट मेड इन इटली। ये इटली में बनाया गया था। सो पिज़्ज़ा एंड डिश आर कॉमन नाउन। ब्रेड क्या है, दिस इज कॉमन नाउन। टमेटो एंड सॉस ये क्या है, कॉमन नाउन। चीज़ भी कॉमन नाउन है, ओवन भी कॉमन नाउन है, जब तक कि किसी का स्पेशल नेम नहीं दिया गया।
सो इट वॉज फर्स्ट मेड इन इटली, इटली में सबसे पहले ये डिश ओरिजिनेट हुई, मीन्स सबसे पहले इटली में बनी। तो इटली इज द नेम ऑफ अ कंट्री, इटली कंट्री का नेम है, सो इटली इज अ प्रॉपर नाउन। एंड पिज्जा डिश, ब्रेड, टमेटो सॉस एंड चीज, ओवन, ये सब हैं कॉमन नाउन। सो नेक्स्ट इज द बर्मुडा ट्राइंगल इज अ मिस्टीरियस प्लेस। जो बर्मुडा ट्राइंगल है वो एक मिस्टीरियस प्लेस है। मिस्टीरियस क्या होता है? रहस्य भरा, जिसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। रहस्य क्या होता है? जिसका कुछ भेद समझ नहीं आता है। सो प्लेस क्या है? कॉमन नाउन। द बर्मुडा ट्राइंगल एक इमेजिनरी प्लेस है, जो बनाई गई है, इमेजिन की गई है कि वहाँ कुछ ऐसा है जिसने उसको मिस्टीरियस बना दिया है। स्टूडेंट्स, ये अटलांटिक ओशन में एक जगह है, ये सी का ही ओशन का ही पार्ट है, बट वहाँ ऐसा कुछ जो रिसेंट हुआ है या इतने सालों में हुआ है, वहाँ शिप है वो सिंक हो जाती हैं, पता नहीं किस रीज़न से, और वहाँ जो उसके ऊपर से जो एरोप्लेन गुजरते हैं उनका भी कुछ पता नहीं चलता। सो दिस इज़ अ मिस्टीरियस प्लेस। तो यहाँ पर बर्मुडा ट्राइंगल ये प्रॉपर नाउन है और प्लेस क्या है? कॉमन। सो नेक्स्ट इज द रेड स्क्वायर इज अ फेमस प्लेस इन मॉस्को, रशिया। रेड स्क्वायर एक जगह का नाम है, वो एक कुछ भी हो सकता है, वो एक क्रॉसिंग हो सकता है या वो राउंड अबाउट हो सकता है, जिसको हम चौराहा कह सकते हैं। वो एक फेमस मशहूर प्लेस है कॉमन नाउन। मॉस्को, मॉस्को क्या है? रशिया का कैपिटल है। रशिया कंट्री है, बिगेस्ट कंट्री या लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसका जो कैपिटल है मॉस्को, वहाँ पर रेड स्क्वायर है। सो रेड स्क्वायर किसी स्क्वायर का नाम है, राउंड अबाउट का नाम है, तो दिस इज प्रॉपर नाउन। प्लेस कॉमन नाउन हुआ, मॉस्को प्रॉपर नाउन, कैपिटल का नेम है, और रशिया क्या है? कंट्री का नेम। सो ये प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज वी मस्ट स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन दे आर नॉट इन यूज। हमें लाइट और बिजली और पंखों को बंद कर देना चाहिए जब वो यूज में नहीं हो। यूज में नहीं हो मीन्स जब आप रूम से बाहर आए या जब आप कहीं बैठे नहीं हैं वहां पर, बट फैन चल रहा है और लाइट चल रहा है, तो वी हैव टू सेव एनर्जी। एनर्जी भी हमें सेव करनी है। सो हमें क्या करना चाहिए? स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, बट नॉट विथ वेट हैंड्स, गीले हाथों से नहीं। सो लाइट्स क्या है? कॉमन नाउन, और फैंस भी क्या है? कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज द डॉक्टर आस्क्ड मी टू वेयर स्पेक्टेकल्स। डॉक्टर ने मुझे कहा कि चश्मा पहनो जो नजर वाला है। सो डॉक्टर क्या है? यहाँ पर कॉमन नाउन। एंड आस्क मतलब मुझे कहा, वेयर मतलब पहनो, स्पेक्टेकल्स मतलब जो नज़र का चश्मा जो बनाया गया है जिससे नज़र कम या ज़्यादा पढ़ने में हमें मदद मिलती है, उसको हम चश्मे को स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में स्पेक्स भी बोलते हैं। सो दिस इज कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज डॉक्टर खान ट्रीट सिक एनिमल्स। डॉक्टर खान है वो इलाज करते हैं बीमार एनिमल्स का। सो डॉक्टर खान, डॉक्टर का नेम लिखा हुआ है यहाँ मेंशन है, तो दिस इज प्रॉपर नाउन। एंड एनिमल्स के लिए क्या है? कोई स्पेशल नाम नहीं है, एनिमल्स है, वर्ड है एक, तो दिस इज कॉमन नाउन। सो स्टूडेंट, दिस वाज आवर एक्सरसाइज। देयर वर 10 सेंटेंसेस इन ऑल। और अब हमें क्या करना है? वी हैव डिस्कस दिस एक्सरसाइज। अब हमें कॉमन नाउन का जो कॉलम है एट पेज नंबर 19, वहाँ कॉमन नाउन वाले वर्ड्स लिखने हैं, और जहाँ प्रॉपर नाउन का कॉलम है वो भी पेज नंबर 7 में ही है 19 पर, वहाँ प्रॉपर नाउन वाले वर्ड्स लिखने हैं। सो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सेंड द पिक ऑफ दिस बोर्ड। इस बोर्ड का पिक भी भेज रही हूँ, बट आपको क्या करना है? नीटली करना है वो काम। और आप हेल्प के लिए आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप पेंसिल से लाइंस भी मार्क कर सकते हैं इन योर बुक, पेज नंबर 19 पर जो कॉलम है, ताकि आपके जो वर्ड्स हैं वो ऊपर नीचे नहीं हो, प्रॉपर अच्छे से दिखें। सो स्टूडेंट्स, डू दिस एक्सरसाइज नीटली एंड नाइसली। नाउ about your homework, because Monday is the homework giving day, so I am going to give you a homework. Yes students, your today's homework is based on our concept, that is nouns, common and proper. So you have to do this homework in your English grammar notebook.
आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट होमवर्क ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज एंड टुडेज डेट दैट इज 11th May on the top right corner of the page. So you have to write the heading, write a common noun for each proper noun. This you have to write. You have been given 5 proper noun. उनके लिए आपको एक कॉमन नाउन लिखना है. सो जैसा कि आपने बुक में किया है, अगस्त, नेहा, द गंगा, 4th इज सिरसा एंड 5th इज रशिया. सो आपको यहाँ पर उनके लिए कॉमन नाउन लिखना है. So this is your homework. You have to do this homework in your English grammar notebook. So that's all for our English class today, students. We will meet in our next class. Till then, bye bye.